मेरा नाम तरनजीत सिंह है। आई एम द CII वाइस चेयरमैन ऑफ चंडीगढ़ और फाउंडर ऑफ एग्नेक्स टेक्नोलॉजीज। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ ਕਰੰਟ 9 ਜੋ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੋ ਵਾਂਟ ਹੈ ਟੂ ਬਿਲਡ ਸਮਥਿੰਗ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੁਣ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਾਡੀ ਲਿੰਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲਿੰਕ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਐਨਰਜੀ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ MSME ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵੱਧਦੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲਿੰਕ ਹਾਲੇ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਨ ਸਾਈਲੋ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੋਰ ਉਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਹੋਰ ਨੀਅਰ ਦ ਕਲਸਟਰਸ, ਇਹ ਕਲਸਟਰਸ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੂੰ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਲਸਟਰ ਬਣੂਗਾ, ਕੌਣ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ। 10,000 ਬਾਇਓ ਸੈਂਟਰਸ ਬਣ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 10,000 ਬਾਇਓ ਸੈਂਟਰਸ ਦਾ 10,000 FPO ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਏਗੀ, ਕਿੰਨੂੰ ਕੀ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਮਾਰਕੀਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਲਿੰਕੇजेस ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ। ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਰੀਕਨਸੀਡਰ ਔਰ ਜੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਲਿੰਕੇਜ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਹੋਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਓਵਰਆਲ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ MSME ਉਹਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਟ ਇੰਡੀਆ ਨੀਡਸ ਇਨ ਦ ਨੈਕਸਟ 10 years, I don't think that we are solving it. We have just solved something pressing right now, and that's why you can see that Bihar and Andhra Pradesh and few regions have been well taken care of. But I think the pressing needs of the entire country that needs to be brought in, and that is what I would want to see if there is some sanshoshan or if there is some amendments in the current. ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਲੱਗੇ ਖਾਸ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਹੋਣ? ਨਹੀਂ, ਹਾਲੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ 1 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਨੈਚੁਰਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਅਗਰ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਉਹੀ ਰੇਟ ਮਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਗਾਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਟੈਸਟਿੰਗ ਔਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ 1 ਕਰੋੜ ਫਾਰਮਰਸ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਹਾਊ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਲੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਰੀਕਨਸੀਡਰ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। बेसिकली जो बजट है मैं कहूँगा इट इज़ बेसिस ऑन 3 एरियाज। वन इज़ मैन्युफैक्चरिंग MSMEs, उन्होंने MSMEs को काफ़ी बेनिफिट्स देते हैं। दूसरा एरिया जो उन्होंने कवर किया है डेट बिहार साइड, जो उन्होंने काफ़ी अच्छे रिफॉर्म्स लेके आए। एंड थर्ड एरिया मैं कहूँगा इनकम टैक्स से उन्होंने बहुत सारे रिलीफ देते हैं। कमिंग वन बाय वन MSMEs की गल की जाए, उन्होंने अनकोलैटरलाइज्ड जो लोन होता है कि बिना तुसी प्रॉपर्टी नू मॉर्टगेज किते तुसी लोन ले सकते हो, सो दैट हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 25 करोड़ टू 100 करोड़। नाउ तुसी यू कैन टेक अ लोन अप टू 100 करोड़ विदाउट अनकोलैटरलाइज्ड लोन, which is a very good part of it, which I see. Second, mudra loans, they have increased from 10 lakhs to 20 lakhs. That is also a very good thing which they have done. Third part of the budget in MSMEs I see new credit rating agency, because पहला क्या होता सी what you will see कि पहले आपका 700 रुपये 700 सिबिल है उसके प्लस है तो ही आपको लोन्स वगैरह मिलते थे। नाउ यू विल सी अ न्यू क्रेडिट रेटिंग एजेंसी वेयर यू कैन टेक लोन्स ऑन न्यू असेसमेंट मॉडल विच विल कम, जिसमें आप लोन ले पाओगे, नॉट जस्ट जो ओल्ड स्कूल मॉडल हमारा चल रहा था कि 700 से ऊपर है तभी आप लोन ले सकते हो, क्योंकि क्रेडिट कार्ड्स की वजह से कईयों के सिबिल्स खराब हो जाते थे। 650 से नीचे होता था तो ऊपर गाइडलाइंस होती थी कि हम लोन नहीं दे पाएंगे। तो MSME के जो प्रमोटर्स थे जिनकी वजह से ये इम्पैक्ट हो रहा था, वो एरिया उन्होंने काफ़ी अच्छे से कवर किया। स्ट्रेस फ्री पीरियड जो था, जो SMA लोन्स कैटेगरी को NPA में ना ले जाने के लिए, वो उन्होंने एक्सटेंड किया है ताकि NPA जल्द से जल्द ना बने और SMA लोन्स की कैटेगरी में ही रहें और वो अपने आप को और क्रेडिट लेके उसको बाहर आने की कोशिश कर सकते हैं। वो उन्होंने एक अच्छी स्कीम लेके आए हैं।
सिडबी की जो नई ब्रांचेस आई हैं वो भी काफ़ी अच्छा बेनिफिट करेंगी। डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स आ रही हैं वो काफ़ी इनको हेल्प करेगी। तो दैट एरिया इज वन वी कैन सी इन मैन्युफैक्चरिंग। जो सेकंड पार्ट है हमारा इनकम टैक्स में हम बात करें तो मेरे ख्याल से रेट्स में इतना कोई खास फर्क नहीं हुआ है, बट हाँ गवर्नमेंट हैज फोकस्ड ऑन द न्यू टैक्स रिजीम। जो न्यू टैक्स रिजीम आई है आई थिंक वो लोगों को चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा न्यू टैक्स रिजीम में आ जाए, ये डिडक्शंस के चक्कर में ना पड़े, ताकि टैक्स सिंप्लीफाई हो पाए और कॉम्प्रिहेंसिव हो पाए, ना कि ये डिडक्शंस एक 80C 80GG 80GGA वो जो अलग अलग पॉलिटिकल डोनेशंस और वो वाला जो पार्ट है उसको वो उनसे लोगों को उससे बाहर निकाल के एक सिंप्लीफाइड सैलरीड क्लास लोगों को लेके जाना चाह रहे हैं, जो हमने इस बजट में देखा है। दूसरा, उन्होंने एक नई विवाद से विश्वास स्कीम लेके आए हैं जो 2024 आई है, जो पहले भी थी बट इन्होंने 2020 में खत्म कर दी थी। अब उन्होंने दोबारा उस स्कीम को 2024 इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि लिटिगेशन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है, तो उसको कम करने के लिए दे हैव पुट दैट स्कीम। और एंजल टैक्स, मतलब अगर आप स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड हैं और आपने अपने शेयर्स बेचे हैं या कंपनी में नए शेयर्स लिए हैं इशू करके, तो जो एंजल टैक्स लगता था वो सारी कैटेगरीज को उन्होंने कवर कर दिया। नॉट जस्ट कि हाँ भाई कोई किसी ने अपना रजिस्ट्रेशन कर रखी है, कोई सेबी रजिस्टर्ड बंदा है और जो वो इन्वेस्ट कर रहा है अपने एंजल फंड में स्टार्टअप में, तो ही उसको एग्जेम्पशन मिलेगी। उन्होंने ऑल कैटेगरीज के लिए वो जो एंजल टैक्स है वो बहुत बड़ा बेनिफिट दे दिया है। इसमें काफ़ी टैक्स प्लानिंग हो सकती है, लोग अब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करेंगे स्टार्टअप में, बिकॉज एंजल टैक्स अब फॉरेन इन्वेस्टर्स के ऊपर भी अब कोई टैक्स रेट नहीं है, उन्होंने ऑल क्लास कर दिया, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी और स्टार्टअप्स में यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहेंगे बिकॉज उनको कोई टैक्स रेट नहीं लगेगा। तो इट इज़ अ बिग रिफॉर्म जो हम लोग टैक्स रेट में देखेंगे। फॉरेन कंपनीज को भी उन्होंने प्रमोट किया है इंडिया के लिए। पहले 40% टैक्स रेट लगता था फॉर फॉरेन, नाउ दे हैव रिड्यूस्ड इट टू 35%, जो बहुत अच्छा रिफॉर्म आया है। और TDS हम कह सकते हैं जो 5% TDS रेट था, उन्होंने 5% वाले क्लॉज को 2% के साथ मर्ज कर दिया, तो अब लोगों के TDS कम कटेंगे, तो वो भी एक अच्छी चीज़ हम देख रहे हैं। उन्होंने इन एरियाज़ के ऊपर काफ़ी फोकस किया। जो उन्होंने खास बात करी है कि सैलरीड का क्लास एम्प्लॉय को कितना क्या बेनिफिट मिलेगा, तो आई डोंट सी मच ऑफ अ चेंज। 17,500 का बेनिफिट है ओवरऑल अगर मैं देखूँ न्यू टैक्स रिजीम में, जो पहले से और इस साल से जो बेनिफिट करेगा, तो इट इज़ नॉट मच बट ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग व्हाट वी कैन कॉल। सो मूविंग ऑन, तो दिस इज द हाइलाइट्स व्हाट वी कैन से इन रिस्पेक्ट ऑफ आवर बजट। ठीक है। और हाँ, प्रॉपर्टीज के ऊपर उन्होंने लेके आए हैं डिजिटलाइजेशन ऑफ मैप्स एंड एवरीथिंग, सो वो एक चीज़ देखने वाली होगी। और हाँ, एम्प्लॉयमेंट वाली मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है, जो उन्होंने 3,000 रुपीज़ पर मंथ हर महीने के लिए उन्होंने एम्प्लॉयर्स को रीइंबर्स किया है, जो पैसा जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी में से कटेगा, वो एक अच्छी स्कीम है। हम डिटेल में उसको देखना चाहेंगे। पहले EPF जो हमारा लॉ था, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट जो था, वो इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं था, बट अब इस स्कीम के बाद ये जो हमारा EPF एक्ट है, ये काफ़ी बड़ा एक्ट बनने वाला है फ्यूचर में, और इसके बेनिफिट्स देखने वाले हैं कि कौन कितना बेनिफिट इस EPF एक्ट से ले सकता है। और एम्प्लॉयर साइड और एम्प्लॉय साइड में उन्होंने फर्स्ट टाइमर एम्प्लॉयज़ के लिए भी किया है और एडिशनल एम्प्लॉय ऐड करने के लिए किया है। एक उन्होंने कवर किया कि आपने फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय आप हायर कर रहे हो, दूसरा आप एडिशनल एम्प्लॉय हायर कर रहे हो, दोनों को अलग अलग स्लैब से उन्होंने बेनिफिट देने की बात करी। सो ओवरऑल ठीक है, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर कवर कर दिया, बिहार की सारी बेल्ट, गया, राजगीर, नालंदा उन्होंने कवर करी है, वो सारी बेल्ट कवर करी है। तो ठीक है, लेट्स सी बजट आगे क्या लेके आता है। तो मेजर पार्ट अगर बेनिफिट दो तो बिहार को ज़्यादा बड़ा बेनिफिट मिला है।